Character sketch of my tailor, written by Stephen Lecoq. My tailor character is delineated by Stephen Lecoq in his essay that name is My Tailor. Basically, he is not a character. He is more than a type of feelings of mankind and on a human level. And the writer, he believes that the tailor is quite ordinary to the expectations of a traditional tailor, and he is always the tailor is always ready to welcome the customers with a smile on his face. The writer has been dealing with him for the last 30 years, but there are certain things that he has described of my tailor as a personality. The character is very vivid. This character can be seen through the essay. The tailor is a man of few words. थोड़ी सी उसने उसके बारे में बातें बताई हैं जो वो जानता है, क्योंकि वो ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता है. He speaks very little but his words carry meaning. He asks the customers about his choice of cloth and color, but once give his preference about the cloth, even the color. It seems that he knows about the choice of the customer. He always stands in the back part of the shop with a measuring tape hanging around his neck. The tailor is very clever and shrewd. He does not mention about the bill till the third order is placed. Even the matter of bill is dealt with correspondence. कि वो कस्टमर के साथ अपनी डीलिंग्स को ख़राब नहीं करना चाहता है, और अगर वो पैसों का तकाजा करता भी है तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करता है, और उसमें फिर वो कह देता है दैट आई हैव a large consignment from Europe and I needed money, so that's why I'm asking you for money. Otherwise, I might not have asked about the money. So he is a clever person and he knows how to hold back his own intentions or his own needs while fulfilling them through some sort of, you can say that, in a very clever manner. And the tailor lifts his knee and wraps the cloth over it, standing on one leg. He can stand in that position for an indefinite period of time. He always gives a fixed time for the stitching of the suit, and it is always a week from Tuesday. मतलब आप जिस दिन भी चले जाएं, राइटर ये कहता है कि वो उसका जो वीक स्टार्ट होता है वो कब से होता है, ट्यूसडे से, और जो वो टाइम फिक्स देता है उसी में वो स्टिच कर देता है. मतलब वो हमारे टेलर्स की तरह नहीं है कि वो चक्कर पे चक्कर नहीं लगवाता है. यूजली पीपल बिगिन देयर कन्वर्सेशन विद वेदर. द टेलर ऑलवेज एंड्स विद इट. आफ्टर हैविंग रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द सूट ही ऑलवेज टॉक अबाउट he talks about the weather, and usually he says pleasant weather we are having. आज मौसम बड़ा अच्छा है. The tailor sees his customers off at the outdoor and by the way ask him about shirting, collaring and hosiery. वो साथ साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन उससे ले लेता है. The tailor has a fine taste for music. He used to play at the flute and was a sidesman of a church, but in his 30 years association he never discussed religion with the writer. मतलब उनका बड़ा सरसरी किस्म का, बड़ा सतही किस्म का रिलेशनशिप था, जिसमें डीप डाउन उसने कभी जाके सोचने की ज़हमत ही नहीं की, उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मतलब टेलर के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो ज़रूरत के तहत था, नीड ओरिएंटेड था, मटीरियलिस्टिक था. उसमें उसको एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लेवल पे उसने कभी भी नहीं लिया था. तो रिलीजन और फाइनेंसेस और पर्सनल लाइफ, ये सारी ह्यूमन लेवल पे ये चीज़ें आती हैं, तो उसको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं था. तो उसने राइटर ने कभी भी टेलर से इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं की थी.
Certainly, the writer has done a good effort to describe the characterizing of the tailor whose memories will always remain present with him. कि उसने बड़ी कोशिश की है और उसके बारे में वो जानता भी कुछ नहीं है. Just he knew about him as a professional person. जो कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी वो ही थी. लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसके भी मसले थे, उसके भी प्रॉब्लम्स थे और वो लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था विदाउट टेलिंग एनीवन, एंड ही नेवर आस्क्ड फॉर हेल्प टू एनीवन. मतलब उसका बिज़नेस जो था वो क्राइसिस में था काफ़ी सालों से, लेकिन उसने ये चीज़ कभी भी डिस्कस नहीं की किसी से. और राइटर जो कि 30 साल से उसको जानता है, 30 इयर्स एक मायने होते हैं, एक मीनिंग रखते हैं लाइफ में. उसके बावजूद मतलब इसका मतलब है कि उन दोनों में, राइटर में और उसके टेलर में कभी भी एक जो ट्रस्ट का लेवल होता है कि जिसमें आप दूसरे पे एतमाद करते हुए उसको अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो लेवल, वो उसका जो कभी रिलेशनशिप इस तरह का डेवलप ही नहीं हुआ है. उनकी बातचीत, उनकी सलाम दुआ जो थी वो जस्ट अपने काम की हद तक थी. My Tailor essay reminds us all the human beings that had a heart, either he or she, either poor or rich. My Tailor is a character documentary on human sufferings and pathos. ठीक है कि इसमें वो उसने एक कॉन्टेक्स्ट दिया है जिसमें इमोशंस ऑफ पिटी एंड सॉरो उसने अपने रीडर्स में उसको अराउज करने की कोशिश की है. मतलब ये पूरे का पूरा ऐसे जो है माय टेलर बेसिकली कैरेक्टर टाइप ऐसे है. ठीक है, इसमें उसने जैसा आपने वो पढ़ा है माय ग्रैंडफादर, उसमें भी एक कैरेक्टर पे बात की है और उसमें जितनी भी बातें थी उसी कैरेक्टर से रेलेवेंट थी. ये भी कैरेक्टर ऐसे है, इसमें जितनी भी बातें, जितनी भी उसने चीज़ें, जितने भी एस्पेक्ट्स उसने डिस्कस किए हैं, उसमें उस एक पर्सन के साथ वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स, सारी की सारी बातें अटैच्ड हैं. ठीक है, तो आप जब आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो इसमें तकरीबन आपका ये पूरा ऐसे जो है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. ठीक है, उसमें उस कैरेक्टर को जिस तरह से उसने पेंट किया है, जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, उसकी डीलिंग्स और उसका बात करने का अंदाज़, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसकी लाइफ के बारे में फ़िलॉसफी, ये सारी चीज़ें. ठीक है, ये इसमें आप उसका कैरेक्टर स्केच इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इसमें आप टेक्स्ट में से भी कोटेशंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपको सूटेबल लगे. So this is all about the character sketch of My Tailor.